اپنی بات سٹارٹ کروں گا. میں اپنا کیمرہ جو ہے وہ چینج کروں گا. اوکے, اب یہ میپ آپ نے دیکھنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ میں یہ سوڈان ہے اس ٹائم, دس از سوڈان. یہ افریقہ کا بہت اہم کنٹری ہے, یہ سوڈان ہے. اور یہ سعودی عربیہ ہے, یہ کے ایس سے سعودی عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ. اوکے, یہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب اگلی چیز دیکھیے گا. اب اگلی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں سوڈان کا. اب اس میپ کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا. یہ سوڈان ہے, یہ آپ الفشر یہ والا جو آج علاقہ ہے یہ فال ہو چکا ہے. اب یہ اس کو لیا کس نے ہے, اس کو کیپچر کیا ہے آر ایس ایف نے. ریپڈ سیکیورٹی جو فورس ہے آر ایس ایف, اس نے اس کو کیپچر کر لیا ہے. اور ورچولی سارا جو یہ والا علاقہ ہے دارفور کا, اس پورے علاقے کو دارفور ریجن کہتے ہیں, یہ سوڈان کا ریجن ہے. اس پورے کے پورے ریجن پہ آج پراپرلی جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے. یہ آخری شہر تھا جس کو ایس اے ایف نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اس شہر کو کنٹرول کرنے کے بعد, آکوپائی کرنے کے بعد, جو یہ والا علاقہ ہے سوڈان کا سارا, اس علاقے کو آر ایس ایف نے آج کہہ دیا کہ آر ایس ایف نے سارے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اچھا, جو باقی کا یہ آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں, باقی کا یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم کس کے کنٹرول میں, یہ سارے کا سارا علاقہ آج بھی ایس اے ایف کے کنٹرول میں. یعنی سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے جس کو پاکستان, سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یورپین کنٹریز, سوری جو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, وہ یہ اس کے پاس ہے. ابھی میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ والا سٹی جو تھا اس سے پہلے, یہ والا سٹی یہ کس کے کنٹرول میں تھا, یہ آج سے پہلے یہ سٹی کنٹرول میں تھا, ایس اے ایف کے کنٹرول میں تھا. ایس اے ایف سوڈان کی جو نیشنل آرمی جس کو پاکستان بھی سپورٹ کر رہا ہے, سعودی عرب بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ بڑی پاورفل آرمی ہے. ان دونوں گروپس میں, آر ایس ایف میں اور ایس اے ایف میں, ایس اے ایف زیادہ طاقتور ہے بیکاز اس کو پاکستان نے بھی ریسنٹلی اسلحہ دینے کا فیصلہ کیا اور ڈفرنٹ کنٹریز بھی اس کو سپورٹ کرے. الفشر کے فال ہونے کے بعد ایس اے ایف کا یہاں سے کھاتا ختم ہو چکا ہے. اب اس پورے علاقے کو, اس پورے ایریا کو, اس پورے ریجن کو کون اس ٹائم کنٹرول کر رہا ہے, آر ایس ایف, ریپڈ سیکیورٹی فورس. اس پورے علاقے کو جو ہے وہ ریپڈ سیکیورٹی فورس اس پورے علاقے کو جو ہے وہ گورن کر رہی ہے. اوکے, اور جو باقی کا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ والا علاقہ سارا, یہ سارا علاقہ جو اس ٹائم ہے, اس کو ایس اے ایف یعنی سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے یا سوڈان کی جو نیشنل فورس ہے, وہ اس کو اس ٹائم جو ہے وہ کر رہی ہے, کنٹرول کریے. اچھا, اب ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, آج سے پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا لیکن آج کے بعد ہمیں ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ سوڈان جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو یہ والا علاقہ ہے یہ پراپرلی اب سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے اس کے کنٹرول میں یہ والا علاقہ نہیں ہے. یہ والا سارا علاقہ جو ہے تو سوڈان کا حصہ ہی, لیکن اس پہ جو رٹ ہے وہ سوڈان کی نیشنل آرمی کی قائم نہیں ہے. اس والے علاقے میں جو رٹ ہے وہ اس ٹائم قائم ہے مور امپورٹنٹلی آر ایس ایف کی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ مہینوں میں سوڈان کے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں, سوڈان کے بھی دو حصے ہو جائیں. آر ایس ایف اس علاقے کو کاٹ کے ایک نیا علاقہ بنا لے. یاد رہے کہ لیبیا میں بھی اس ٹائم جو ہے وہ سول وار چل رہی ہے, تو سوڈان کی سول وار کے بعد معاملات خراب ہو سکتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ از دیٹ کہ یہ ساری جو سچویشن ہے, یہ ساری کی ساری سچویشن اس ٹائم سوڈان کے لیے بڑی ٹھیک نہیں ہے. سوڈان اس چیز کی وجہ سے بڑا پریشان ہے, اور سوڈان کی طرف سے ہمیں بار بار اسٹیٹمنٹس دیکھنے کو اور سمجھنے کو مل رہے ہیں کہ سوڈان جو ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں انفارچونیٹلی. اب بات کیا ہے, اب یہ میں نے آپ کو سچویشن بتا دی کہ سوڈان ہمیں لگ رہا ہے کہ بٹنے والا ہے, ڈیوائیڈ ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. سوڈان آلریڈی, ساؤتھ سوڈان جو تھا, سوڈان کا جو حصہ تھا جو کہ کرسچن کمیونٹی تھی, وہ 2011 میں آلریڈی سوڈان سے الگ ہو چکا ہے. تو سوڈان آلریڈی پہلے ہی بہت ویک ہو چکا ہے, پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے. اس معاملے کے بعد سوڈان جو ایز اے نیشن ہے, سوڈان جو ایز اے سوورن کنٹری ہے, وہ ہمیں اور زیادہ ویک ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور آلریڈی ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. اب اگلی بات کو دیکھتے ہیں, اگلی بات کو سمجھتے ہیں. اب یہ سارے معاملے تو میں نے آپ کو بتا دیے. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے, پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں گا کہ سوڈان میں کون کون سا گروپ کس کس کو سپورٹ کر رہا ہے. سوڈان میں اس ٹائم جو ایس اے ایف ہے, جو سوڈان کی نیشنل آرمی ہے, جو اس ٹائم سوڈان کے تقریباً 75% علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے, خرطوم سمیت, جو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا, اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایجپٹ, مصر, اس کو سپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ, پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے, ایران اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ساؤتھ سوڈان بھی, جو ساؤتھ سوڈان 2011 میں الگ ہو گیا تھا, ساؤتھ سوڈان بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس بھی پولیٹیکلی سپورٹ کر رہا ہے, اور افریقن یونین تو آلریڈی سپورٹ کر رہی ہے. تو میجورٹی آف دا کنٹریز آر سپورٹنگ رائٹ ناؤ ٹو دس گروپ وچ از نون ایز سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے یا سوڈان کی جو نیشنل فورس ہے, اس کو یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے.
अब रैपिड सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, आरएसएफ को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? आरएसएफ को इस टाइम यूनाइटेड अरब एमिरेट सपोर्ट कर रहा है। आरएसएफ को इस टाइम जो है वो लिबिया सपोर्ट कर रहा है, लिबिया का जो खलीफा हफ्तार का ग्रुप है वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, चैड भी सपोर्ट कर रहा है और रशिया का वैगनर ग्रुप भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब रिसेंटली हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, मैं आपको रिसेंट रिपोर्ट बताना चाहता हूँ कि ये कल की रिपोर्ट है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने कुछ ड्रोन्स दिए हैं, चाइनीज ड्रोन्स, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स को, जो वो यूज कर रहा है एसएएफ के अगेंस्ट, जो कि सऊदी अरब का एलाई है। अब सुनिएगा इस खबर को, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इस रिपोर्ट को बताया। A US intelligence agency reported as recently as October that United Arab Emirates UAE has increases its supply of Chinese drones and other weapons systems to Sudan's paramilitary rapid security force. The supply including advanced Chinese made drones, इसके साथ साथ along with small arms, heavy machine guns, vehicles, artillery, mortars and ammunition. What I am saying right now is that कि जो सूडान है, जो सूडान की रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, जो कि एक मिलिशिया है या एक जिसने रिवॉल्ट किया है, इस ग्रुप को इस टाइम लेटेस्ट यूरोपियन वेपन्स दे रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, वो एसएएफ को सपोर्ट नहीं करता। सो दैट्स आल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दैट रिस्पेक्ट। अगली बात सुनेगा, अब इस सारे मामले में अगली बात ये है कि अब इस सारे मामले का हल किस तरफ जाएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सूडान का मैप दिखाया है। सूडान ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड है। अब इसका जवाब ये है कि सूडान जो है इसका ब्रेकअप होने वाला है। सूडान का ये बहुत सारे एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं और हमें भी ये लगता है कि अल-फशर के बाद मेरा नहीं ख्याल से कि इस टाइम सूडान की जो गवर्नमेंट है उसका कोई रेट कायम है दारफुर के एरिया में। दारफुर बेसिकली एक रीजन है सूडान के अंदर ही, इसको दारफुर कहते हैं। उस सारे के सारे दारफुर के मेजॉरिटी ऑफ द इलाके में इस टाइम रैपिड सिक्योरिटी फोर्स की बहुत तगड़ी फौज है, और वो जो फौज है इसकी उसको सपोर्ट करता है यूएई इसको असला बेचता है, और जिससे रैपिड सिक्योरिटी फोर्स ड्रोन से अटैक्स करते हैं। खर्तूम के अंदर, जो आपको याद होगा, मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई कि खर्तूम के अंदर जो एयरपोर्ट है सूडान का, खर्तूम में कैपिटल में, वहाँ पे एक अटैक हुआ ड्रोन्स का। तो ये ड्रोन्स कहाँ से इनको मिल रहे हैं? ये ड्रोन्स इनको लिबिया से मिल रहे हैं, या ये ड्रोन्स इनको जो है वो मिल रहे हैं उनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये ड्रोन्स दे रहा है, तभी इनकी पावर इतनी बढ़ रही है। सो दैट्स रीज़न वाई हमें ये चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आज पार्ट हुआ है, आज वाला पार्ट बड़ा समझना ज़रूरी है। आज हुआ ये है कि जो सूडान का शहर था अल फशर, ये फॉल हो चुका है। एसएएफ ने कहा कि हम अपनी फौज को पीछे लेकर जा सकते हैं क्योंकि हम अब लड़ाई कर नहीं सकते ज़्यादा। तो अल फशर का इलाका चारों तरफ से पिछले कई महीनों से आरएसएफ ने, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स ने घेरा हुआ था, और आज रैपिड सिक्योरिटी फोर्स जो है वो दाखिल हुई है। अच्छा, अब जो हमारे पास से विजुअल्स आ रहे हैं, जो सैटेलाइट से विजुअल्स आ रहे हैं, वो विजुअल्स बड़े ख़राब हैं। आरएसएफ मशहूर है कि ये जब भी कहीं पे जाते हैं, जब भी कहीं किसी इलाके का ये कंट्रोल करते हैं, तो ये लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, ये जेनोसाइड शुरू कर देते हैं। तो आरएसएफ की बहुत सारी इमेजेस हमें मिली है कि जब शहर को सूडान की जो नेशनल आर्मी ने जब उस शहर को छोड़ा, और आरएसएफ के जो लड़ाका या जो भी रेबल ग्रुप है या जो भी फोर्सेस अंदर आए शहर में, अल-फशर में, तो उन्होंने लोगों को गोलियां मारना शुरू की। स्ट्रेट उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दी, जो कि आम लोग थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि द थिंग इज दैट कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज आरएसएफ को सपोर्ट भी नहीं करते, बिकॉज ये आपस की लड़ाई में जो शहरी हैं आम, उनको मारते हैं। अब इस टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 2,60,000 2,60,000 पीपल हैव बीन राइट नाउ ट्रैप्ड इन अल-फशर। अल-फशर के इलाके में तकरीबन 2,60,000 लोग जो हैं वो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली फंसे हुए हैं, और जिसमें से हाफ ऑफ देम, तकरीबन 1.5 लाख जो है, इसमें से चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं छोटे। ऑलरेडी हमें भूख की, नंग की जो है प्रॉब्लम नज़र आई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा सूडान में, क्योंकि पिछले 2 साल से सिविल वॉर हो रही है सूडान में, और ये अनफॉर्चुनेटली आने वाले टाइम पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल हैं एंथोनियो गुतेरेस साहब, उन्होंने कहा है कि दैट द लेवल ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय फाइटिंग इन द सिटीज अनबियरेबल। तो उन्होंने कहा कि अल-फशर में इतने अरसे से लड़ाई हो रही है, जो सिटी आज फॉल हुआ है आरएसएफ रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के हाथों, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अनबियरेबल है, और हमें बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि ये मामला हुआ। अगली बात सुनिएगा, आप एक मिस मैरीना पीटर हैं। मिस मैरीना पीटर जो है ये चेयर वुमेन है एट जर्मन
सूडान एंड साउथ सूडान फोरम एक थिंक टैंक है, इन्होंने DW एक जर्मनी का एक नेशनल टीवी है या जर्मनी का एक टेलीविजन है नेटवर्क है DW, उसको इंटरव्यू में इन साहिबा ने कहा है कि फॉर वीक्स trapped civilians has been trying to leave the city since it became apparent that RSF could take over the city completely. Attempts to flee have increased once again. अब कहा यह जा रहा है कि एक तरफ RSF जो है उसने इस पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया, लेकिन लोगों को ये पता लग चुका था कि RSF अल-फशर के इलाके को कब्जा कर लेगी, बिकॉज चारों तरफ से उसको घेरे में ले लिया था। और अब लोग डर के मारे शहर को जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करें, बिकॉज RSF के बारे में मशहूर है कि ये लोगों को मार देती है, ये लोगों को कत्ल कर देती है, ये लोगों पर रहम नहीं करती, विच इज बिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगली बात सुनिएगा। अब येल यूनिवर्सिटी का जो ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब है, उसने बीबीसी को एक चीज़ बताई। येल यूनिवर्सिटी आपको पता है अमेरिका की एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, उसका एक रिसर्च लैब है जो कि ह्यूमैनिटेरियन मामलात पे रिसर्च करता है, यूएन के साथ भी ये बड़ा कनेक्टेड है। इसने ये बताया है, इन्होंने ना, इनके पास बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स हैं। आपको पता है अमेरिका इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, उसकी हर यूनिवर्सिटी के पास अपना हेलीकॉप्टर पैड होता है, तो ऑब्वियसली उनके पास अपनी सैटेलाइट भी है। तो येल यूनिवर्सिटी के जो कुछ जो इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स ने ये बताया है बीबीसी को, दैट since the cities was captured, satellite images have shown that piles of bodies executed in masses or shot by snipers attempting to breach the city पैरामीटर वॉल। अब इस टाइम जो है वो येल यूनिवर्सिटी जो है इस टाइम सारे के सारे मामलात को बड़े करीब से देख रही है, और जो उनका ह्यूमैनिटेरियन विंग जो है वो इस टाइम सैटेलाइट से जो उन्होंने इमेजेस देखे, तो ये बताया कि जब से RSF ने इलाके को कब्जे में लिया है, तो जो लोग शहर को छोड़ना चाहते हैं उन लोगों को शहर से निकलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो शहर से निकलने का जो दरवाज़ा है या जो एरिया है वहाँ पे लोगों को शूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि आपने शहर से नहीं निकलना। सो RSF ही ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूशंस कर रही है, इस वजह से दुनिया में गुस्सा पाया जा रहा है कि RSF इस तरह आम लोगों को क्यों मार रही है, बट ऑब्वियसली सिविल वॉर है तो उसमें RSF मशहूर ही इसलिए कि वो आम लोगों को मारती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगली बात है कि जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान साहब जो हैं, फतेह अल बुरहान साहब जो हैं वो SAF सूडान की जो नेशनल आर्मी है उसके सरबराह हैं, और जो है वो एक इंटरम प्रेजेंट भी हैं इस टाइम सूडान के। उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि सूडान की जो नेशनल आर्मी है या सूडान की जो SAF की फोर्स है उसको इवेंचुअली अपने आप को अल-फशर इलाके से निकलना पड़ा, क्योंकि वो घेरे में आ गई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं सारी की सारी फ़ौज ही फारिग ना हो जाए, हार ही ना जाए फ़ौज सारी, ये सरेंडर ना कर दे, तो उनको इवेंचुअली फ़ौज को निकालना पड़ा और इस इलाके को इवेंचुअली देना पड़ा किनके हाथों में, RSF के हाथों में। और आज जो है वो ये आखिरी शहर था अल-फशर, जिसके बाद सूडान का जो नेशनल आर्मी है उसका जो होल्ड है वो दारफुर का जितना भी इलाका है उस सारे के सारे रीजन में आज जो है वो RSF का पूरा होल्ड हो चुका है। ये आखिरी शहर था जिसमें सूडान की नेशनल आर्मी जो बैठी हुई थी, बट इवेंचुअली अब हमें लग रहा है कि जो सूडान है वो ब्रेकअप इसका होने वाला है, या ये टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, बट इवेंचुअली हमें लग रहा है क्योंकि दो ग्रुप्स जो हैं ये अपनी अपनी जंग जो है वो हमें जीते हुए नज़र आ रहे हैं। जो SAF है उसको जो इलाका चाहिए था वो उसके पास है, लेकिन जो RSF है उसने अपना जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स ने जो दारफुर के इलाका लेना था वो इवेंचुअली वो सारा इलाका अब उसके हाथ में, इवेंचुअली वो बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इवेंचुअली हमें ये नज़र आ रहा है कि मैसीकेयर तो हो रहा है, बट मैसीकेयर के अलावा वो जिस इलाके में अपनी गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है वो बनाएगा, और इवेंचुअली हमें ये लग रहा है कि ये ब्रेकअप ही सूडान का एज ए स्टेट, सूडान का एज ए कंट्री जो एक बहुत प्रॉस्पर कंट्री था और अभी भी है, उसका हमें ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहा है। बट दैट्स हाउ इट इज़। इसमें UAE जो है वो सपोर्ट कर रहा है RSF को, UAE RSF को जो है वो ड्रोन्स दे रहा है, उसको तगड़ा कर रहा है, उसको ताकतवर कर रहा है, और इवेंचुअली हमने देखा कि RSF जो है उसकी जो पावर है वो विद द टाइम इंक्रीज़ हुई है। नॉट ओनली दैट, उसने ना सिर्फ उसकी पावर इंक्रीज़ हुई है बल्कि उसने अटैक्स भी ज़्यादा किए हैं और उसने